Hi everyone, welcome to my channel One Stop IT Preparation. So, as I have mentioned earlier, I am very excited because in this video I will be discussing about some problem solving techniques for data structure and algorithm, and it will definitely help a lot for all the SBISO aspirants. So, as you can see in my channel, if you haven't come yet, so please see I have created one playlist SBISO preparation, so all the videos which I will be uploading will be uploaded into this playlist. Okay. So if you haven't subscribed my channel, please subscribe and also press the bell icon so that you don't miss any future video notification. Okay. So let's start for this today's session. Okay, so this is a first question. Okay, so before starting this video, I would recommend, like, when you are seeing any question in my screen, okay, you can pause this video for 2 minutes and try to solve the question on your own, and then you see the answer. It, like, if you can able to answer any question, then it will give you some confidence. Okay. Okay, so let's start. So this first question is telling a program P reads in 500 integers in the range 0 to 100, representing the scores of 500 students. It then prints the frequency of each score above 50. What would be the best way for P to store the frequencies? So here you can see, like, there are four options are there. So, like, how we can solve this problem? Just think first. Okay, so we will be solving in this way. First, try to analyze the problem. What it says, like, the marks range will be 0 to 100, and what it asks to you, that it prints the frequency of each score above 50. मतलब 50 के ऊपर जितना स्कोर है उन लोगों का फ्रीक्वेंसी कितना होगा। तो इसके लिए किस तरीके का डेटा स्ट्रक्चर हमें चाहिए, तो आप देखो इसका सॉल्यूशन हम कैसे करते हैं। ठीक है। ओके, तो पहले देखो कि टोटल मार्क्स कितना है, 100 है। ओके, एंड हमको क्या बोले हैं, 50 के ऊपर जितना होगा। तो 50 के ऊपर कितना मार्क्स हो सकता है, टोटल 50 मार्क्स ही हो सकता है। अगर मान लो कि सब लोग 100 मिला है तो वो 50 के ऊपर ही मिला है, तो फ्रॉम 51 टू 100 यही मार्क्स आ सकते हैं इधर। तो एक एरे लेते हैं, देन एरे 0 विल कंटेन फ्रीक्वेंसी ऑफ मार्क्स 51। समझ लो कि 500 लोगों से 100 लोगों को 51 मिला है, तो एरे 0 में 51 का फ्रीक्वेंसी स्टोर होगा। ऐसे करके एरे 1 पे हम स्टोर कर सकते हैं 52 मार्क्स का फ्रीक्वेंसी। तो इसमें आप देख सकते हो एरे का जो पोजीशनिंग है वो 0 है और मार्क्स है 51। मतलब आप एक चीज देख सकते हो, इसके अंदर डिफरेंस ना 51 आ रहा है। सिमिलरली इधर देखो आप, एरे 1 और इसका मार्क्स है 52, तो इसका भी डिफरेंस है 51। सो बाय दैट लॉजिक एरे 49 अगर होगा तो उसमें ही हमको 100 मार्क्स आएगा, क्योंकि 100 माइनस 49 इज इक्वल टू ऑल्सो 51। सो array which starting from 0 and ending at 49, so we can see its total size is 50. So the answer will be A. Okay, in array of 50 numbers. I hope it is clear. Like, if you have any doubt, you can comment the same in the comment section, or we have a dedicated Telegram group also. There also you can post your doubts. Okay, so going to the next question. Okay, what is multiple inheritance in C++? Deriving a derived class from more than one base class, deriving a derived class from one base class, deriving a base class from more than one derived class, deriving a base class from one derived class. Okay, so it is a pretty simple question. Okay, so inheritance, it is a property
of OOPS means object oriented programming. मल्टीपल इनहेरिटेंस मतलब क्या होता है कि मल्टीपल पेरेंट्स रहता है, उससे कोई क्लास एक्सटेंड करेगा। ठीक है, मतलब एक चाइल्ड क्लास का मल्टीपल पेरेंट क्लास रहेगा। ओके, सो दैट इज कॉल्ड मल्टीपल इनहेरिटेंस। सो इन दैट केस आवर आंसर विल बी ए। और एक चीज याद रखना, जावा पे मल्टीपल इनहेरिटेंस पॉसिबल नहीं है इन क्लास लेवल। So in that's why they have mentioned in C++. If they mentioned, if it is in Java, then you should take the answer that no, in Java multiple inheritance is not possible. Okay, so I am going to next question. अच्छा, मैंने बोला था प्रीवियस वीडियो में कि कोई कोड स्निपेट दे देगा, उससे आपको आउटपुट बताना पड़ेगा, तो यही है क्वेश्चन, देख सकते हो। ओके, देखो वेरिएबल कुछ वैल्यू इनिशियलाइज किया है, x इक्वल्स टू 33, देन इन द नेक्स्ट लाइन z इक्वल्स टू x प्लस 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 17, एंड देन द नेक्स्ट लाइन y इक्वल्स टू प्लस प्लस z माइनस प्लस प्लस एक्स। तो पहले ये बताना होगा कि फाइनली इसके बाद आउटपुट क्या होगा, मतलब एक्स वाई एंड जेड में वैल्यू क्या क्या रहेगा। ओके, it's a very important question, means you should know the techniques. Okay, now coming to the solution part. देखो पहले एक चीज हम बताते हैं, ये जो किसी वेरिएबल के बाद में प्लस प्लस है तो उसको हम बोलते हैं पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर, और किसी वेरिएबल के पहले अगर प्लस प्लस है तो दैट वी आर कॉलिंग प्री इंक्रीमेंट ऑपरेटर। ठीक है, तो पोस्ट इंक्रीमेंट ऑपरेटर में क्या होता है, पहले वो वैल्यू को प्रिंट करता है, उसके बाद इंक्रीमेंट करता है। और प्री इंक्रीमेंट में क्या होता है, पहले ही इंक्रीमेंट कर देता है एंड उसके बाद वो प्रिंट करता है। तो पहले लाइन से हम देखेंगे, पहले क्या बताया है, x इक्वल्स टू 33, here you can see x equals to 33, so x plus plus means value of x is 33, it prints first and then incremented by 1। तो इस लाइन पे देखो z equals to x plus 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 17, मतलब here it will print the value of x as 33 and plus 17, then in this line z equals to 50, but when the control will go to the next line the value of x will become 34। Okay, and in the y, here what happens, let's see। Okay, so plus plus z means first it will increment and then it will print। So in the previous line we see value of z becomes 50, so in this line value of z becomes 51, and after execution of previous line value of x was like 34, so after this increment the value of x becomes 35। So in this line after execution we are getting y value as 16, so final answer is x equals to 35, y equals to 16 and z equals to 51, which comes in this option। Okay, you should know this technique, it's a very important problem। Okay, coming to next question। Okay, it's also a very important question, let's read the question। Consider the following C declarations, assume that objects of data type short, float and long occupy 2 bytes, 4 bytes and 8 bytes respectively. What is the memory requirement for variable t? And here we can see one structure is defined, in that structure one short array is there, one union is there, and in that union float and long is there, and we need to calculate what will be the total size it will calculate। It's also a very important question, I am giving it a pause, just think this problem, okay, then I will go to this। Okay, so try to understand this problem first। We will calculate the total memory requirement for this struct। Okay, so in this struct what are our elements, first element is short,
and we can see short is taking 2 bytes. So like चांस नंबर वन वेयर स्टूडेंट गलती कर सकता है, ये A5 जो दिया है शॉर्ट, इसमें 2 बाइट्स ले लेगा, बट ये गलत होगा क्योंकि देखो क्या बताया है, इट्स एन एरे, एरे ऑफ साइज 5 एंड एरे का ईच एलिमेंट होगा शॉर्ट। तो एरे में 5, टोटल 5 नंबर्स ऑफ शॉर्ट एलिमेंट होगा एंड एक का साइज अगर 2 बाइट है तो 5 का साइज टोटल होगा 10 बाइट्स। ओके, नाउ पिन पॉइंट नंबर 2, यूनियन। इधर क्या है, फ्लोट है एंड लॉन्ग है। तो आप जो गलती करता है इधर यूनियन में जो है, दोनों को ऐड कर देता है, बट यूनियन में ऐसा नहीं होता है। यूनियन में क्या लेता है, उसका जो एलिमेंट का मैक्स साइज है वही लेता है यूनियन पे। वी शुड टेक द मैक्स एलिमेंट साइज इन एन यूनियन। So here we can see in this union what are those elements, float and long, and we can see float is taking 4 bytes and long is taking 8 bytes, and total union size will be max of float and long. So we can see max of 4 plus 4 and 8 is 8 bytes. So total size of the union is 8 bytes and total size of the short array is 10 bytes. So total answer will be 10 plus 8, 18। ठीक है, अब थोड़ा इसमें ध्यान दो। मान लो किसी ने शॉर्ट देखकर 2 बाइट ले लिया और इधर 8 बाइट ले लिया यूनियन पे, तो 8 प्लस 2 10। देखो गलती करोगे तो उसका भी एक ऑप्शन आपके पास होगा। ठीक है, तो अभी ऐसा आप मान लो कि किसी ने यूनियन में टोटली ऐड कर दिया, तो 8 + 4 = 12 एंड शॉर्ट में एरे में हो गए 10। सो 12 + 10 = 22। देखो 22 भी ऑप्शन में है। तो ऑप्शन ऐसा रहेगा ना, जितने की तरीके से आप गलती कर सकते हो वो भी एक ऑप्शन में रहेगा। सो प्लीज केयरफुली सी द क्वेश्चन फर्स्ट, ओके, एंड एनालाइज। ओके, नाउ going to the next question. Okay, so it's a question from time complexity in algorithm. So arrange the following complexity of the in the ascending order: O2 to the power n, O n, O log n, O n log n, O n square. Okay, now understand this type of problems. Whenever you will face this problem, I will show you some efficient technique. Okay, first tip, either we can see the base is 2, so that's why we will take n as a any value which is multiple of 2. Let's take n equals to 512. 512 means it's 2 to the power 9. Now we will calculate the value and see. So first thing, O 2 to the power n means 2 to the power 512. It will be huge. O n means O 512, that is 512. Then O log n means a log, here base is 2, I cannot write base here, so that's why I mentioned it here. So log of 512 base 2 means 9. O n log n means 9 into 512. Then O n square means 512 square. Now first and second both are huge, so how we will calculate, like whichever is greater or lesser. Now see here, 512 means 2 to the power 9 and 2 to the power 9 overall square. So in this index rule we can see the total power will be multiplied, so it is coming as 2 to the power 18 and it was 2 to the power 512. So now we are in a position to calculate that 2 to the power 18 is less than 2 to the power 512. Now if you compare this value, you will understand ascending means chota se bara. So we can see like whichever is like smallest and whichever is highest. So based on which we can see that A is the answer. So this is a great problem. Okay, I hope you have understood it. Going to the next problem. Okay, now see, I earlier I told you some code snippet can be there, and from there you may be asked to calculate the time complexity. So here you can see one nested two for loops are there. One is outer for loop and one is inner for loop. And what they say, what will be the time complexity? Okay.
So first thing, whenever any nested thing will be there, it should be multiplied, and we should calculate the outer for loop total complexity and inner for loop total complexity. Okay, now let's do this thing. Okay, so first focus on this outer for loop. We can see I starts from 0, I less than equals to n, means we can it is n times. So our first out loop will be run n times. Second thing, j equals to m, j greater than 0, j equals to j by 2. तो ये जो j equals to j by 2 है, someone can understand that it is halving. So second loop will run m by 2 times, and then total will be nm by 2, but this constant part will can remove, so answer will be onm. So there you could have made a mistake. Now see how we can calculate. Let's take m equals to 16. If we take m equals to 16, how this loop runs? In the next iteration, j equals to first j equals to 16 here, then in here j equals to 8, again the loop will run, j equals to 4, again the loop will run, j equals to 2. Okay, so in this way, first take 16, then m8, then 32. So now analyze this thing. When m equals to 8, we are getting 4 iterations. When m equals to 16, we are getting 5 iterations. When m equals to 32, we are getting 6 iterations. So that means it is not m by 2. If it was m by 2 na, then for 16 we could have like get 8 times, but we are not getting. So can we still that? For it is o n log m plus 1 means log 8 means 3, and here is 4 means 3 plus 1 is 4, log of 16 means 4, and here is 5 means 4 plus 1 is 5. So we can tell here that it is O of log m plus 1 times. Log here is best, and like since it is a nested loop, we can see it will be multiplied. So total is O of n into log m. This plus 1 we can ignore. Okay, this is a very important problem. I hope you have understood this thing. If you have any doubts, you can ping in the comment section. Now going next. Okay, another problem from algorithm. We can see algorithm is made up of two modules, M1 and M2. If order of M1 is Fn and M2 is Gn, then what will be the order of algorithm? Max of Fn Gn, mean of Fn Gn, Fn plus Gn, Fn into Gn. Okay, now we will see this problem, how we are solving this. Okay, let's say two modules. First module is of O n square and second module is of O log n. तो दोनों मॉड्यूल एग्जीक्यूट करना है किसी कंप्यूटर को, तो इसको तो पहले जो मॉड्यूल है फर्स्ट मॉड्यूल, इसको करने के लिए तो इतना टाइम उसको देना पड़ेगा। उसके बाद सेकेंड मॉड्यूल भले ही कितने छोटे हो, ठीक है, तो टोटल टाइम देने के लिए तो ऑलरेडी इट इज पासिंग द मैक्स टाइम. So if this question is coming like if it is consisting of two modules, the like total complexity will be max of these two modules. So for this max we are taking this O n square 2, so the answer will be max of Fn Gn. Okay, so this is a recurrence relation. So which of the following is the recurrence relation for insertion sort? Tn equals to Tn minus 1 plus On, Tn equals to Tn by 2 plus On, Tn equals to Tn square plus O log n, Tn equals to Tn square plus O n 11. It's a memory based question. If you do not remember, then also I am showing you one trick. इंसर्शन शॉट क्या होता है? जो लोग कार्ड्स प्ले करते हैं, हाथ पे जब कार्ड्स लेते हो,
एक के बाद एक के बाद एक आप इंसर्शन ऑर्डर पे रखते हो, ठीक है। तो वन एट अ टाइम आप लेते हो एंड उसको सॉर्ट करते हो। तो इसलिए टोटल प्रॉब्लम से एक को आप हटा रहे हो एंड उसको फिर सॉर्ट कर रहे हो, ठीक है। तो दिस विल बी द आंसर, टी एन इक्वल्स टू टी एन माइनस वन प्लस ओ एन। Here you can see it. Okay, going next. Acha. Which of the following sorting algorithm is efficient in terms of time complexity? Merge sort, insertion sort, selection sort, bucket sort. It's also a theory based question. Okay. Okay, so for bubble sort, insertion sort, selection sort, all these things we can get worst case O n square type complexity, and in merge sort we get O n log n complexity. So merge sort is best in between this in terms of time complexity. Okay, let's, here we can see for insertion, selection and bucket sort it's O n square. For time complexity of merge sort is O n log n. So the answer will be A. Okay, going next question. Acha, this is a Master's theorem. Okay, so here what is the question? Master's theorem can be applied on which of the following recurring relation? Tn equals to 2tf n by 2 plus 2 to the power n. Next is Tn equals to sine n. Next is Tn equals to Tn square plus 2n square plus 1. And D is none of the above. This is a very important question. And it's a very basic question, I tell you. Now, coming to solutions for it. Okay, first get the definition of Master theorem. What is the format of Master theorem? Tn equals to a t n by b plus fn, where a and b are constants, we know. Okay, so here we can see all are here as constant. So by this, okay, we are seeing this thing, ठीक है. So it can be applied to option A only. Why? Because T of n by b, here only we can see it is having that format. In other relations it is not in that format. T of n by b means एक प्रॉब्लम को किसी सब प्रॉब्लम में डिवाइड करना होगा, तो वो तो इधर नहीं हो रहा है, तो कैसे इधर अप्लाई होगा? तो जिसमें हो रहा है उधर ही सिर्फ मास्टर थ्योरम अप्लाई हो सकता है. सो द आंसर विल बी A. नेक्स्ट क्वेश्चन. अच्छा, तो इधर देखो, एक मतलब रिकरेंस रिलेशन आपको दे दिया गया है और इधर से आपको बोलना पड़ेगा इसका कॉम्प्लेक्सिटी क्या है. ओके, टी एन इक्वल्स टू 8 of tn by 2 plus n square and then t1 इक्वल्स टू 1. ठीक है, तो इसका टेक्निक हम बताएंगे क्या है. तो हम ऐसी प्रॉब्लम को मास्टर थ्योरम से सॉल्व करते हैं. इसका और भी एक टेक्निक है, आपको n इक्वल्स टू 2 टू दी पावर k पकड़ लेना और उसके बाद कांस्टेंट बिठा बिठा कर एक जीपी सीरीज आएगा, उधर से भी आप कैलकुलेट कर सकते हो, जिसको जो सही लगे. ठीक है, हम कैसे कैलकुलेट करते हैं वो हम दिखाते हैं. तो मास्टर थ्योरम पहले तो मैं दिखाया, टी एन इक्वल्स टू ए टी एन बाई बी प्लस एफ एन. ठीक है, बट एफ एन क्या है, कैसी फॉर्मेट में है वो भी दिखते हैं. एफ एन ऐसे फॉर्मेट पे होगा, बिगो ऑफ, इसको आप थीटा करके समझो, मतलब मैं वर्ड पे तो थीटा नहीं लिख सकता इसलिए ओ करके लिखे हैं. ठीक है, थीटा ऑफ एन टू दी पावर के देन लॉग टू दी पावर पी एंड एन. ठीक है, तो ऐसे होगा फंक्शन का डेफिनेशन. आप इसको कंपेयर करो. ठीक है, फर्स्ट इधर क्या है, टी एन बाई बी के आगे ए, तो इसका मतलब है a इक्वल्स टू 8, n बाई टू एन बाई बी, इसका मतलब है b इक्वल्स टू 2. इधर है n स्क्वायर, कैसा फॉर्मेट रहेगा, n टू दी पावर k इंटू लॉग टू दी पावर p n. तो
लॉग तो पहले नहीं है, तो इसका मतलब p इक्वल्स टू जीरो होगा। क्यों? क्योंकि किसी का टू दी पावर जीरो मतलब वन। मतलब इधर तो हम बोल ही सकते हैं कि एन स्क्वायर मतलब एन स्क्वायर इंटू वन है, और उस वन के जगह हम लॉग के ऊपर जीरो लगा सकते हैं, तो इन दैट केस p इक्वल्स टू जीरो। अब एन स्क्वायर इधर देखो एन टू दी पावर के, इसका मतलब k इक्वल्स टू टू। ओके, नेक्स्ट थिंग हमको चेक करना होता है a एंड b टू दी पावर k का कंपैरिजन। तो इधर हम देख सकते हैं b टू दी पावर k मीन्स टू टू दी पावर टू मतलब फोर, एंड a का वैल्यू है एट, तो एट ग्रेटर देन फोर। ठीक है, तो इसका बहुत कंडीशंस होता है। ये a ग्रेटर देन b टू दी पावर k हुआ, तो ऐसी कंडीशन में आंसर क्या होता है? थीटा ऑफ n टू दी पावर log a बेस b। ठीक है, log a बेस b मतलब नीचे b ऊपर a, उसको हम log का प्रॉपर्टी के तरह से लिख सकते हैं log a डिवाइडेड बाई log b। तो वही हम किए हैं, n टू दी पावर log 8 डिवाइडेड बाई log 2। log 8 मतलब log ऑफ 2 टू दी पावर 3। log के ऊपर जो आते हैं वो बाहर चले आते हैं, तो 3 बाहर चला आया, log 2 कट गया, तो ऐसे आप सोच सकते हो। तो आंसर विल बी ओ थीटा ऑफ n क्यूब, आंसर बी। ये इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, ऐसे आप इसको समझ, ट्राई टू अंडरस्टैंड दिस थिंग, लाइक इफ एनी प्रॉब्लम कम्स इन दिस टाइप यू कैन आंसर। ओके, अब देखो और भी एक थियोरेटिकल क्वेश्चन। टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ मार्च सॉर्ट एल्गोरिदम एंड बाइनरी सर्च एल्गोरिदम आर, ओ लॉग टू एन एन लॉग एन, जो भी है आंसर आपका ऑप्शंस आप एक बार देख लो, मैं एक पॉज लेता हूँ। ओके, तो मार्च सॉर्ट का मैं पहले भी बोला हूँ, क्या है? एन लॉग टू एन। एंड बाइनरी सर्च मतलब क्या है? टोटल जो होगा पहला कंडीशन उसको सॉर्टेड होना चाहिए, उसको हाफ हाफ करके हम ढूंढते हैं। तो मतलब इन ईच इटरेशंस वी आर डूइंग इट इन हाफ। ठीक है, तो पहले अगर 16 रहेगा तो नेक्स्ट में 8 रहेगा, तो उसके बाद 4 रहेगा, इसके बाद 2 रहेगा, तो उसका कॉम्प्लेक्सिटी आपका आता है वो लॉग टू एन, ये याद रखना। मार्च सॉर्ट का है एन लॉग एन एंड बाइनरी सर्च का है ओ लॉग टू एन, सो आंसर विल बी बी। ये आप देख लो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन। If one uses straight two-way merge sort algorithm to arrange the following elements in ascending order, then the order of the elements after the second pass of the algorithm। अच्छा, तो ऐसी टाइप का प्रॉब्लम में आपको क्या किया है? किसी भी सॉर्टिंग एल्गोरिदम है, यू नीड टू ड्राई रन इट। मतलब जो भी एल्गोरिदम है उसको कैसे करते हो वो ड्राई रन करके ही आपको पता होना चाहिए। तो इसको करने के लिए आपको जानना पड़ेगा कि मार्च सॉर्ट एक डिवाइड एंड कॉन्कर एल्गोरिदम है। मतलब हम टोटल सीक्वेंस को छोटे छोटे पार्ट में डिवाइड करते हैं, उसके बाद एक छोटे छोटे पार्ट को सॉर्ट करते हैं, देन जोड़ते हैं, इसलिए इसको डिवाइड एंड कॉन्कर बोले हैं। तो इधर देखो, बोल बताए हैं टू वे, इसका मतलब दो दो अलग करके पार्ट लेना पड़ेगा। ठीक है, चलो सॉल्यूशन पे देखते हैं। ये देखो, टू वे सॉर्ट मीन्स दो एलिमेंट को आप लो एंड उसको सॉर्ट करो असेंडिंग ऑर्डर पे। तो पहले से देखो 20 एंड 47 इस दोनों को लिया, और ये दोनों असेंडिंग ऑर्डर पे है तो रख दिया। फिर लिया 15 एंड 8। ठीक है, तो इस ये असेंडिंग में नहीं है, तो सॉर्ट करने के बाद 8 एंड 15 आया। इसके बाद हम लोग लिया 9 एंड 4, सॉर्ट करने के बाद आया 4 एंड 9। इसके बाद हम लोग लिया 40 एंड 30, सॉर्ट करने के बाद ये आया है 30 40। 12 17 ऑलरेडी सॉर्टेड, सो ले लिए। तो ये फर्स्ट पास के पास ये रिजल्ट हो गया। मैंने मार्च सॉर्ट में क्या बोला था? डिवाइड करने के बाद कॉन्कर करना पड़ता है, मतलब जोड़ना पड़ता है। अब ये जो दो दो करके एक है, इस एक एक को एक ब्लॉक समझो, और टू वे बताया है, तो हम नेक्स्ट स्टेप में क्या करेंगे? एक एक करके ब्लॉक को जोड़ेंगे। ठीक है, तो पहला दो ब्लॉक हम जोड़ते हैं, और रूल सेम, जोड़ेंगे और सॉर्ट करेंगे। तो 20 47 8 15,
ये जोड़ने के बाद अगर सॉर्ट करते हैं तो क्या आएगा, 8, 15, 20, 47। देखो 8, 15, 20, 47, 4, 9, 30, 40, ये ऑलरेडी सॉर्टेड है, तो इसको जोड़ने के बाद ऐसे की ऐसे ही रहेगा। देन 12, 17 इसका पेयर नहीं मिला, तो वो ऐसे ही रहेगा। तो आपका सेकेंड पास आपका सीक्वेंस ऐसा आता है, जो आपका जो बी दिया गया है इस इससे मैच हो रहा है, तो आंसर विल बी बी। तो आपको समझ में आया, ऐसे किसी भी एल्गोरिदम आपको दे सकता है, एक पास के बाद या दो पास के बाद क्या होगा, आपको सिर्फ ड्राई रन करके लिखना है ये चीज। ओके ओके, नाउ ये क्वेश्चन देखो, ये स्टैक से आया है एंड बोला है इनिशियली द स्टैक इज एम्प्टी, आफ्टर दैट फॉलोइंग ऑपरेशंस हैपन, पुश ए, पुश बी, पुश सी, पॉप, पुश, देन दो पॉप, पुश पुश पॉप। ओके, सो स्टैक बेसिकली क्या है, स्टैक एक लीफो है, मतलब लास्ट इन फर्स्ट आउट, ये ध्यान रखना होगा। पुश मतलब स्टैक में किसी एलिमेंट को हम एंटर करवा रहे हैं, पॉप मतलब स्टैक से किसी एलिमेंट को हम बाहर निकल रहा है। तो ऐसी ऑपरेशंस हमें इधर करना होगा और सीक्वेंस को याद रखना है। तो देखो कैसे हम सॉल्व करते हैं इसको। अच्छा, पहले क्या बताया, ए बी सी, ठीक है, तो पहले तीन आप पुश कर दो, पहले ए को पुश किया, इसके बाद बी को पुश किया, इसके बाद सी को पुश किया। आप इसको मतलब कंपेयर कर सकते हो प्लेट जैसे रखते हो, घर पे जो डिश होता है तो वो जैसे रखते हो उसी से आप कंपेयर कर सकते हो, ठीक है, ए बी सी। अब पॉप, तो मैंने क्या बोला, स्टैक मतलब है लास्ट इन फर्स्ट आउट, तो पॉप करेंगे तो सबसे लास्ट में जो इन हुआ है इसके मीन्स सबसे टॉप में वही है, तो उसको पॉप करेंगे, ठीक है। तो पॉप करेंगे उसका मतलब सी हट जाएगा और क्या रहेगा, ए एंड बी रहेगा। उसके बाद हम डी को पुश कर रहे हैं, मतलब क्या होगा, अभी ये सी के जगह अभी डी होगा, ठीक है। अब दो बार पॉप मतलब डी एंड बी दोनों चला जाएगा। अब क्या बचा हुआ है, सिर्फ ए बचा हुआ है। इसके बाद हम क्या करेंगे, ई और एफ को पुश करेंगे, मतलब अभी क्या होगा, ए ई एंड एफ, ये तीनों होगा। इसके बाद वन टाइम पॉप मतलब टॉप में है एफ, तो इसको निकल लेंगे, तो क्या बचा रहेगा, ए एंड ई, आंसर विल बी बी, ठीक है। तो ऐसी तरीके से आप ऑपरेशंस को समझ लो, ठीक है। तो ये सब बिल्कुल बेसिक टू मीडियम लेवल क्वेश्चंस है, ऐसे टाइप का ही आएगा, मैंने पहले भी बताया है। नो मतलब बहुत डिटेल में जाके कुछ नहीं आएगा, अगर आएगा भी तो बट एक या दो, उसको लेकर टेंशन लेने का कोई बात नहीं, ऐसे टाइप का ही आएगा। ओके, तो ये देखो, ये एक टू डायमेंशनल एरे दिया हुआ है, कुछ साइज बताया है। एज्यूमिंग दैट ईच इंटीजर टेक्स वन मेमोरी लोकेशन एंड द एरे इज स्टोर्ड इन अ रो मेजर ऑर्डर, फर्स्ट एलिमेंट ऑफ द एरे इज स्टोर्ड एट लोकेशन 100, व्हाट इज द एड्रेस ऑफ एलिमेंट बी आई जे। ये मैंने पहले वीडियो में बताया था कि रो मेजर कॉलम मेजर करके एरे का एड्रेस कैलकुलेशन आपको करने देगा, तो वही एक टाइप का ये क्वेश्चन है। चलो देखते हैं। अच्छा, पहले तो ये फॉर्मूला देख लो, ठीक है, ए आई जे, इसका रो मेजर में अगर होगा तो कैसे फॉर्मूला होगा, फर्स्ट होगा बेस एड्रेस मतलब पहला एलिमेंट जहां पे स्टोर होता है, प्लस i-1 इंटू टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स प्लस j-1, ये टोटली एक ब्रैकेट पे है, एंड इसके साथ इंटू होगा टोटल डेटा टाइप साइज, इधर बताया गया है ईच इंटीजर टेक्स वन मेमोरी लोकेशन, मतलब हम एक लेंगे। अच्छा, और एक चीज, इधर हम -1 क्यों कर रहे हैं, आपको बहुत मतलब डाउट हो सकता है, किसी किसी में लिखा होगा इधर तो कोई -1 नहीं होता है, हाँ, दैट इज ऑल्सो ट्रू। कब -1 होता है, जब देखते हैं एरे 1 से स्टार्ट हो रहा है, अगर एरे 0 से स्टार्ट होगा तो -1 हम इधर नहीं लेंगे, ठीक है। तो अभी देखते हैं कैसे कैलकुलेट करेंगे। बोले है फर्स्ट एलिमेंट कहाँ पे स्टोर है, 100 लोकेशन पे, तो बेस एड्रेस की जगह हम 100 देते हैं, ठीक है। उसके बाद टोटल कॉलम नंबर,
क्या होता है, एरे का फर्स्ट नंबर रो नंबर डिनोट होता है, सेकेंड कॉलम नंबर डिनोट होता है। तो 1 to 15 मीन्स टोटल नंबर ऑफ कॉलम्स विल बी 15 प्लस जे माइनस 1। एंड इधर बता दिया है कि ईच इंटीजर टेक्स वन मेमोरी लोकेशन, सो हियर वी विल पुट एज 1। नाउ वी विल डू दिस कैलकुलेशन, लिख 15i minus 15 plus j minus 1, so minus 16 will be there, which will be subtracted from this 100, which is equivalent to 84, and 15i plus j, so total it is coming as 15i plus j plus 84, so this option will be D। ठीक है। अच्छा, अगर क्वेश्चन ऐसे आता कि कॉलम मेजर, तो कॉलम मेजर के लिए फॉर्मूला क्या होता, कॉलम मेजर के लिए डिफरेंस सिर्फ ये टोटल कॉलम की जगह टोटल रो हो जाता। ठीक है, और कुछ नहीं, और बाकी सब सेम। ओके, गोइंग टू नेक्स्ट क्वेश्चन। अब देखो, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बाइनरी सर्च ट्री से। क्या बताया है, बाइनरी सर्च ट्री इज जनरेटेड बाय इंसर्टिंग इन ऑर्डर ऑफ द फॉलोइंग इंटीजर्स करके आपको कुछ ऑर्डर दे दिए गए हैं। आपको बताना होगा नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट रेस्पेक्टिवली। ओके, तो ऐसे टाइप का प्रॉब्लम के लिए आपको बाइनरी सर्च ट्री बीएसटी ड्रॉ करना है। बीएसटी ड्रॉ कैसे करते हैं उसका रूल आई विल टेल यू। ओके, अच्छा, first rule, if anything less than root it comes, it will be in the left subtree, and if anything greater than root is coming, it will be in the right subtree। तो फर्स्ट क्वेश्चन ये हो सकता है, रूट क्या होगा, पहले जो एलिमेंट आता है वो है रूट, तो पहले 50 को हम रूट पे फिक्स कर देते हैं। नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका, नेक्स्ट आ रहा है आपका 15। 15 50 से लेस है, तो 15 50 का लेफ्ट और जाएगा, तो इसलिए हम देख सकते हैं 15 इधर आया। ठीक है, नेक्स्ट क्या आ रहा है आपका 62। 62 50 से ग्रेटर है, तो इसलिए 62 राइट के तरफ जाएगा। नेक्स्ट आ रहा है 5। 5 तो 15 से भी कम है, तो 15 का लेफ्ट पे 5 आएगा। नेक्स्ट आता है आपका 20। 20 15 से ज्यादा है बट 50 से लेस है, मतलब 20 आपका इधर जो 15 है 15 का राइट पे आएगा, बट ओवरऑल स्ट्रक्चर पे ये 50 का लेफ्ट पे आएगा। क्योंकि आप तो बोल ही सकते हो कि 20 तो सर 62 से भी लेस है, तो इधर क्यों नहीं, दैट दिस इज बिकॉज ऑफ दिस थिंग कि रूट का जो लेवल है उससे तो कम है, तो 50 के रिस्पेक्ट से ये लेफ्ट पे आएगा। तो इसी तरीके से अगर हम 58 91 ऐसे ऐड करते हैं, हम दिखाते हैं 58 जब हम ऐड कर रहे हैं, ठीक है, तो 58 50 से ज्यादा है, 62 से लेस है, तो इसलिए इधर आ गया 62 का लेफ्ट साइड पे। देन 91, 91 तो 62 से ज्यादा है, तो इसलिए 91 इधर आ गया। 3 3 5 से भी लेस है, इसलिए सबसे नीचे आ गया 8। 8 देखो 5 से ग्रेटर है बट 15 से लेस है, इसलिए 5 का राइट पे ये 8 आ गया। देन आ गया 37। 37 20 से ग्रेटर है बट 50 से लेस है, इसलिए 20 का राइट साइड पे आया। देन आ गया 60। 60, अब देखो 60 तो 91 से कम है, तो 91 से लेफ्ट पे हो सकता था, बट क्यों नहीं होगा, क्योंकि 62 से तो वो कम है ना, तो 62 का जो लेवल होगा उससे लेफ्ट पे ही होगा, एंड 58 से ज्यादा है, इसलिए 58 का राइट पे है 60। देन कमिंग 24, देखो 24 37 से लेस है, इसलिए 37 से लेस इधर आ गया। अब जो रूट पे है इसको हम लेवल 0 बोलते हैं, उसके नीचे लेवल को लेवल 1, ऐसे करके टोटल लेवल पे आप तो देख लो। अब क्या बताया है क्वेश्चन में, क्या निकालना है, नंबर ऑफ नोड्स इन द लेफ्ट सब ट्री एंड राइट सब ट्री ऑफ द रूट। तो लेफ्ट पे क्या क्या है, 1 2 3 4 5 6 7। देखो नोड्स इन लेफ्ट सब ट्री क्या क्या है, 15 है, 5 है, 20 है। ठीक है, उसके बाद 3 है, 8 है, 37 है, 24 है। अब काउंट करोगे तो टोटल आ रहा है आपका 7। अब राइट पे क्या क्या है, 62 है, 58 है, 91 है एंड 60 है, इस चार ही है, सो टोटल 4, सो द आंसर विल बी 7 4। ठीक है, तो यही था आपका
some typical questions आप ताकि you can like used to it, and I hope this some I have told you some of the unique and efficient tricks. Okay, yeah, this you will not find anywhere. I am telling you from my expertise. Yeah, you can solve it using your own tricks, that's always welcome. But if anyone doesn't know like how to tackle this problem, then I hope this video will help you. Okay, so if you like this video, please like it, and if you have any doubt, you can post it in the comment, or you can join in my Telegram group and post your doubts there. Okay, so good night, everyone. We will see you in the next video. And if you haven't subscribed to my channel, please subscribe it and hit the bell icon. Okay, thank you, everyone.